Good afternoon, students. Today we are going to start our first chapter of civics, that is understanding diversity. And this is our lecture number 1. So let's start. So our chapter name is understanding diversity. Okay, so what is diversity? Actually, students, people call India a miniature version of the world. Just like across the world, you will come across people of different tastes, likes, dislikes, cultures and religions. In India too, you will come across various kinds of people. You don't have to look far. Look at your classmates. Do they look the same? No. Do people speak the same language at home? No. Does everybody eat the same kind of food? No. Does everybody follow the same religion? No. So there are a variety of students in your class. And it is this variety that makes India a country of diversity. And this variety makes India a vibrant place where the cultures meet, religions coexist, and different ideas take birth. So it's beautiful mixture of similarities and dissimilarities. So students, ask your classmates who sits beside you what his her favorite song is. Ask the same question to the classmate who sits behind you. Chances are their favorite songs are different. Now that you know their answers, do their favorite song match with yours? However, if you ask all your classmates the same question, you will find out that there are more than one student who love a particular song the most. So now do the same experiment, but this time ask what their favorite color is. So chances are that the students who have the same favorite song might not like the same color. So you see, you are you see, you are all different from each other, and yet you are similar in some way. So this is the beauty of diversity, and it brings a breath of fresh air in your class, in your society, and in our country. Clear students, what is diversity? ओके डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी आपके कंट्री में, इवन आपके अगर क्लास एग्जांपल ले तो इवन क्लास में भी आप जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यू, कि सबके क्या होते हैं, सबके टेस्ट अलग होते हैं. ओके, सबके टेस्ट अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है. ओके, सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं. सो वहां पर भी क्या होता है, जब इस तरीके से चेंजेस पाए जाते हैं आपस में, जब हम ना आपस में चेंज होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन होता है, तो वहां पर वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम नाउ. Yes, look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? So in this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, culture, and religious backgrounds. And these differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. ओके, सो ऑल दीज डिफरेंट पीपल्स, ये जितने भी सभी अलग अलग जो लोग हैं, who come from all kinds of the background, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, and belong to all kinds of religion and cultures, जो अलग अलग रिलीजन से और कल्चर से बिलोंग करते हैं, help to make India so interesting
and so diverse. यही इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनको डाइवर्स बनाते हैं. Okay, so what does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? So read this chapter to find some answers. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर हम इसी चैप्टर को रीड करेंगे और वहां से क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को निकालेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर. इट इज गिवन इन योर बुक इन योर चैप्टर. ओके, देयर आर 3 पिक्चर. 3 पिक्चर्स हैं ये आपके पास दी हुई है, जो कि आप देख रहे हो कि सबने जो भी ड्राइंग है तीनों की डिफरेंट है. ठीक है, तीनों जो है अलग अलग पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है. सो देखिए, सो 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव. तो यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. तो आपके पास भी देखिए जो है साइड में आपके बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपको वहां पर अपना भी एक ह्यूमन फिगर बनाना है, ड्रॉ करना है, so is your drawing similar to any of the other? The chances are that your drawing is quite different from the other 3. जितने ऊपर आपने 3 पिक्चर्स देखी, आपने 3 ड्राइंग देखी आपके बुक में, अगर आप अपनी भी खुद से एक ड्राइंग बनाओ, ह्यूमन फिगर बनाओ, तो आप ये देखोगे कि बहुत मतलब कि मोस्टली चांस ये होगा कि आपकी फिगर जो है इन तीनों फिगर से अलग बनेगी. So which you can see are quite different from each other. And this is because each one of us has a unique drawing style. और मेन कारण क्या होता है, क्योंकि हम में से सबका अपना एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है and we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak. खाली हम इस चीज में ना देखिए, हम बहुत सी चीजों में हम एक दूसरे से डिफर होते हैं. जैसे लैंग्वेज वी स्पीक, जो लैंग्वेज बोलते हैं हम, तो लैंग्वेज भी यहाँ पर आप देखो कि अलग अलग लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है. कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है. ओके, आवर कल्चर, बैकग्राउंड, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. और वो जो हम ड्रॉ करते हैं, अगर हमें कोई ड्राइंग करने के लिए दिए, हम एक क्लासमेट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको अगर एक ड्राइंग भी ड्रॉ करने के लिए दे दी जाए, तो हमारी जो ड्राइंग होती है वो भी क्या होती है, सब एक दूसरे से अलग होती है. ओके, so you check how many of you have similar answer. Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not. But many of you may have similar answer. Okay, अगर मान लो आप एक दूसरे से चेक करें तो आपको क्या क्या दिखेगा आपको वहां पर, कि आप ये देखोगे कि यहाँ पर कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबका जो होगा, जो आंसर होगा सबका एक जैसा नहीं होगा. और मे बी हो भी सकता है, ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो, प्रोबेबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर. पर ये भी हो सकता है कि कुछ का सेम आंसर हो. सो हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास? ओके, तो आपको देखना है कि इनमें से अब आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर कि सबका अपना एक अलग स्टाइल होता है. तो आपके कितने ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनके एक तो आपके जैसा जो आपने आंसर लिखा सेम आपके जैसा आंसर हो. आपके क्लास में जो स्टूडेंट हैं टोटल मतलब वो मिलाकर वो कितनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, और इनमें से भी अब तक आपको ये अब बिल्कुल आपको गेस हो गया होगा कि कई मामलों में तो आप अपने जो फ्रेंड हैं उनकी तरह ही हैं, उनके जैसे ही हैं, बट कई जगह पर आप उनसे बिल्कुल अलग हैं. But now you must have recognized many ways in which you are quite like some of your classmates. बिल्कुल आप कुछ अपने कुछ क्लासमेट्स के सेम उन्हीं की तरह हैं, and other way in which you are different from them. Okay, so now students, actually, so in this chapter you have our story. So now we read this story.
So do you think our heading is making friend? So this story is regarding Samir A and Samir Do. Okay. So do you think it about be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. Yes. So students, I had meant it as a joke. यहाँ से ये स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है now. So यहाँ पर वो एक जो है यहाँ पर एक बच्चे हैं समीर एक, ठीक है, समीर एक अभी आपको बताएंगे कि हम समीर एक और समीर दो ये क्यों हम ये नाम बोल रहे हैं, तो अभी आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो कहते हैं कि आई हैड मेंट इट एज अ जोक, कि मैंने इसे एक ना मजाक की तरह लिया. A joke made up for a small rat boy who saw newspaper at the Janpat crossing at a very busy intersection. कहते मैंने एक बच्चा था, उसने कहा कि मैंने एक बड़ा मजाक की तरह लिया, और ये जो जोक जो था ना, जोक क्या था कि जो कि एक ना फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक छोटा सा लड़के के लिए था, जो कि जनपद के बड़े ही रश वाले बिजी इंटरसेक्शन में वहां पर लाल बत्ती पर न्यूज़पेपर बेचता था. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper, holding out the English paper and screaming out the evening's headline in a mixture of Hindi and English word. अब वो कहते कि वो क्या कहता है कि वो कहते कि मैं जब भी वहां से साइकिल से जाता था, गुजरता था वहां से, तो वो जो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर था वो हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे पीछे भागता, और उस दिन की जो हेडिंग होती थी उसको हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर वर्ड्स में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता था. ओके. सो देन this time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. इस बार मैं पेमेंट पर किनारे पर रुका and asked for the हिंदी पेपर. मैंने क्या करा, मैंने हिंदी पेपर के बारे में पूछा. ठीक है. His mouth fell open. उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said, as I paid for paper. मैंने कहा बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जब मैंने उसको पेपर के पेमेंट करते हुए बोला ऑफ कोर्स, आई नो हिंदी. सो व्हाई व्हाट डिड यू थिंक? कहते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मतलब क्यों लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती है. सो ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज. ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? अब वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अंग्रेज जैसे दिखते हो, तो इवन कि तुम्हें पढ़नी भी आती है हिंदी. ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently. I can speak, read, I can speak, read and yes, students. So of course I said this time little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in the school. तो अब वो कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी में लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरे स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट है. सो subject, he asked, how would I explain what a subject was to someone who had never been a school? तो अब सब्जेक्ट उसने दूसरे बॉय ने पूछा, न्यूज़पेपर सेल करने वाले बॉय ने पूछा सब्जेक्ट. सो अब जो समीर ये था, ये जो बॉय था स्कूल जाने वाला, इसने पूछा, उसे लगा कि अब मैं ऐसे पर्सन को कैसे सब्जेक्ट के बारे में समझा सकता हूँ जो कभी स्कूल ही ना गया हो, तो सब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करूँ. सो वेल, इट इज समथिंग. ओके. सो आई सेड इट इज समथिंग एंड आई बिगेन. अभी मैंने शुरू ही किया था, बट द लाइट्स चेंज.
लाइट चेंज हो गई, रेड से ग्रीन लाइट हो गई, एंड द honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. ओके, सो मुझे वहां से, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से हॉर्न बज रहे थे, तो मुझे वहां से जाना पड़ा. ओके, so now the next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. नेक्स्ट डे फिर से वो वहां पर मुझे मिला. ओके, और उसने पूछा, सब द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, वो फिर से वहीं पर था, एंड स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ देखकर स्माइल की, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. ठीक है, और हिंदी पेपर उसके हाथ में था, और बोला, भैया भैया, ही सेड, आपका अखबार. ठीक है, उसने भैया को हाथ में, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर था, उसने हिंदी पेपर न्यूज़पेपर को देते हुए कहा, भैया आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है. द इंग्लिश वर्ड साउंड इज स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. अब क्या था कि जब उसने ये पूछा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज है, सो द जो इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट उसने बोला, सो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. उसके टंग से वो जो इंग्लिश वर्ड था बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा था, एंड इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवेयर एल्स. और ये जो इंग्लिश वर्ड था, जो सब्जेक्ट जो वर्ड था, ये उसके मुंह उसके जो जब उसने बोला तो उसके मुंह से ये ऐसा लग रहा था, उसके टंग से, कि ये उसका दूसरा मीनिंग, जैसे कि दूसरा मीनिंग मतलब कि रूल्ड बाय, यानी जो प्रजा होती है, उस मीनिंग में वो ऐसे उसे यूज कर रहा था. ओहो, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड. ओके, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, तो उसे कहा ये कुछ पढ़ने लिखने से रिलेटेड है. मैंने कहा, एंड बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, सो आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल. नेवर. तो क्योंकि अब रेड लाइट हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो. नेवर, कभी नहीं. he answered and he added proudly, और उसने फिर क्या कहा, उसने बड़े प्राउडली बोला. ठीक है, प्राउडली उसने क्या कहा कि I began working when I was so high. मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत क्या था, ऊंचा था, मतलब मैं बड़ा हो गया था. And he measured himself against my cycle seat. और उसने ना जो मेरी साइकिल सीट थी ना, उसके हाइट तक अपना अपनी मेजर करते हुए बताया कि मैं जब तुम्हारी साइकिल सीट जितना था हाइट वाला, तब से मैंने काम शुरू कर दिया था. सो फर्स्ट माय मदर यूज्ड टू कम विद मी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन. पहले तो मेरी मदर मेरे साथ आती थी, पर मैं अब अकेले ही सब कर लेता हूँ. वेयर इज योर मदर नाउ, आई आस्क्ड. बट देन द लाइट्स चेंज, लेकिन अभी मैंने पूछा ही था कि तुम्हारी मदर अब कहाँ है, तो लाइट चेंज हो गई, एंड आई वाज ऑफ. बट आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मेरठ विद द रेस्ट वाज डाउन आउट. लेकिन मैंने क्या क्या था, लेकिन कहते जब मैं वहां से गया, तो मुझे ना पीछे से चिल्लाते हुए सुना कि वो मेरठ में है, और उसके साथ बाकी क्या हुआ कि बाकी जो इतना शोरगुल हो रहा था, शोर हो रहा था ट्रैफिक का, तो उसमें मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया. ओके, देन माय नेम इज समीर. माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट डे फिर से वो मिले उसी जगह पर, और तब उसने बताया, माय नेम इज समीर, and very shyly he asked, what's your, और बड़े शर्माते हुए उसने पूछा, what's yours. It was incredible, बड़े ही आश्चर्य की बात थी ये. My bicycle wobble, मेरे एकदम से साइकिल लड़खड़ा गई, and my name is Sameer too, कि मेरा नाम भी समीर है. I said, what. His eyes lit up, उसके जो आंखें थी वो चमकने लगी. And yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know.
तो अब वो ये कहते हैं कि हाँ कहते हैं कि मैंने उसको बताया कि जैसे मेरा नाम समीर है, भी मेरा नाम भी समीर है। सो वो कहते हैं कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का मीनिंग? हवा, यानी पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। ओके, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। ओके, अब वो जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला बच्चा था उसने कहा, अब तुम्हारा नाम, अब से तुम्हारा नाम क्या है? समीर एक, और मेरा नाम क्या है? समीर दो। इसीलिए ये स्टोरी में जो ऊपर नेम है समीर एक एंड समीर दो। सो ही सैड triumphantly, उसने बड़े ही खुश हो, जैसे था बहुत खुश होकर कहा, something like that, I answered, and then I held out my hand, हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. तो अब क्या था, तो अब जो दोनों का नाम हो गया था समीर एक एंड समीर दो। तो अब उसने कहा, जब समीर एक जो था उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैंने आंसर दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसका जो बड़ा वो छोटा सा जो हाथ था वो मेरे हाथ में एक, जैसे होता है ना एक नन्ही सी चिड़िया की तरह, वो मेरे हाथ में समा गया। और मेरी साइकिल जो है, मैं जो वो साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की जो वार्म थी वो अभी भी मैं महसूस कर रहा था। ओके, so the next day, I didn't have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. ओके, तो नेक्स्ट डे जब वो मिले तो जो स्माइल हमेशा से उसके फेस पर होती थी वो उसके फेस पर उस दिन नहीं दिखी। रीजन क्या था? क्योंकि जो मेरठ में क्या हो गए थे, रॉयट्स मतलब दंगे हो गए थे वहां पर। ठीक है, दंगे हो गए थे, तो इस वजह से वहां पर काफी लोग मेरठ में मर मर गए थे। सो आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइन की तरफ देखा देखा कॉम्युनल रॉयट्स, हेडिंग लिखी थी वहां पर कॉम्युनल रॉयट्स, एंड इट ब्लेज। बट समीर, आई बिगेन, अभी मैंने शुरू किया था बट समीर, तो वो उधर से समीर दो बोला, आई एम अ मुस्लिम समीर, मतलब मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। he said in answer, and all my people are in मेरठ, मेरे सभी रिलेटिव्स हैं वो मेरठ में हैं। his eyes filled with tears, and when I touched his shoulder he would not look up, वो ऊपर उसने नजरें नहीं उठाई। so he was not at all crossing the day after, he was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again. And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. तो आप उसके बाद से अगले दिन से वो मुझे वहां पर नहीं मिला, ना उसके अगले दिन ना उससे अगले दिन, वो मुझे कभी भी वहां पर नहीं दिखाई दिया। हिंदी और इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। तो अगर हमें यहाँ पर जो स्टोरी हमारी अभी फिनिश हो गई है, तो अगर हमें यहाँ से उन दोनों के बीच में क्या बतानी है, अगर हमें डिफरेंस बतानी है इस स्टोरी में, तो आपको क्या डिफरेंस मिलेंगे? व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ टू समीर, what we learn. So the story of Samir Ek and Samir Do is a story of hope as well as sadness. What we see here is that a newspaper seller is a poor fellow who was not fortunate enough to enroll in the school. On the other hand, Samir Ek reads in a swanky school and knows English. Yet these differences didn't hinder the formation of the friendship between the two boys. Even when Samir Ek learns that other Samir belongs to different religion, he still tries to comfort Samir though.
So this proves that notion that diversity weakens the unity of a country is wrong. Secondly, the story also shows that diversity means differences, and these differences can be misused by the politicians, goons, and anti-social elements to spread enmity among communities and to weaken the nation. तो दोनों तरह के पॉइंट्स हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं जो हमने ये स्टोरी पढ़ी कि स्टोरी से जो समीर एक एंड समीर दो की है, यहाँ पर हमें ये भी देख रहे हैं कि जो दो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, दो यहाँ पर बच्चे हैं समीर एक एंड समीर दो, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों एक स्कूल जाता है एक स्कूल कभी नहीं गया, एक बहुत रिच है दूसरा क्या है पुअर है, ठीक है, दोनों एक मुस्लिम है एक हिंदू है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन दोनों का कल्चर भी अलग है, रिलीजन भी अलग है, ठीक है, फिर रिलीजन बैकग्राउंड भी अलग है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे के फ्रेंड बने, क्यों बने, क्योंकि वो बनना चाहते थे। अगर स्टूडेंट्स हम लोग आपस में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहते हैं, तो ये कोई डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस कास्ट के हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप एक जो वे है वो ढूंढ लेते हो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करने का, एक दूसरे से बात करने का। सो डाइवर्सिटी जो है वो कभी भी इनइक्वालिटी में नहीं आ सकती, ठीक है, इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी जो कंट्री की यूनिटी को वीक कर देती है, नहीं। ओके, तो अभी मैंने आपको बोला दिस प्रूव्स दैट द नोशन दैट डाइवर्सिटी वीकन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है अगर ये कहना कि एक कंट्री की यूनिटी को डाइवर्सिटी जो है का जो विचार है वो उस यूनिटी को क्या बना देता है, वीक बना देता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो हम ये चीजें जो हैं वो बीच में नहीं आती। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।